Shalom and good morning to everybody. Once again, those who are watching us online. And I, Reverend Anish Masih, am really glad to come to you once again this morning and to share the word of God with you. मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक जन के लिए जो आज की सुबह मुझे और आपको ज्वाइन कर रहा है, और थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन करा। और मैं रेवरेंड अनीश मसीह आप सबको हमारी तरफ से ग्रीटिंग्स देता हूँ। एंड आई एम सो ब्लेस्ड that I get this opportunity to come to you every day and to share the word of God with you. मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हर सुबह मुझे ये मौका मिलता है कि मैं आप तक आ पाता हूँ और आपके संग खुदावंत के कलाम को बांट पाता हूँ। आज की सुबह भी मैं ईमान रखता हूँ कि आपके लिए खुदावंत एक अच्छा वचन दे रहा है। I believe once again this morning God is going to give us a beautiful word. This is Proverbs chapter 10 and verse 8. नीति वचन की किताब उसका 10 बाब और उसकी 8वीं आयत। जो बुद्धिमान है वो आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। In English it is written like this: The wise in heart will receive commandments. The wise in heart will receive the commandments, but a prating fool shall fall. The Bible says the one who is wise in heart, he will receive the commandments. The one who is wise. You know, we are not known as a wise in the word of God because of what we have achieved, because what we want to do. But a wise person in the Bible means the one who takes the commandment of God, the one who follows the word of God, the one who laid down the foundation of his life and his heart on the word of God. परमेश्वर के वचन में आपको मालूम है जो बुद्धिमान कहा गया है वो उस व्यक्ति को नहीं कहा गया है जो दुनिया की बहुत ज़्यादा समझ रखता हो या जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो या ज्ञानी हो, पर उसको कहा गया है जो अपने जीवन को परमेश्वर के कलाम के हिसाब से चलाता है और जो अपने घर की नींव परमेश्वर के वचन पे डालता है, अपनी जिंदगी की नींव परमेश्वर के कलाम के मुताबिक डालता है। That person is called as a wise man in the Bible. उस व्यक्ति को एक समझदार व्यक्ति बोला गया है वचन के अंदर। Now the Bible says जो बुद्धिमान है वो आज्ञाओं को स्वीकार करता है, आज्ञाओं को स्वीकार करता है। The Bible, yes, it is full of grace. बिल्कुल सही बात है कि बाइबल अनुग्रह से भरी हुई है, but the Bible is also full of commandments. And these commandments are not to lead us into temptation or to take us away from God, but these commandments are to make us wise. ये जो जब बाइबल हमें मालूम है अनुग्रह से भरी हुई है, पर बाइबल साथ ही साथ परमेश्वर के नियमों से, उसकी आज्ञाओं से भी भरी हुई है। और ये आज्ञाएं हमें परमेश्वर से दूर नहीं ले जाती हैं, पर ये आज्ञाएं हमें परमेश्वर के करीब लाती हैं और मुझे आपको बुद्धिमान बनाती हैं। बाइबल में लिखा है जो बुद्धिमान है वो आज्ञाओं को स्वीकार करता है। एंड द बाइबल सेज द वाइज इन हार्ट विल रिसीव कमांडमेंट्स। I would like to encourage you, people of God, today that let us receive the commandments of God. We usually want to receive the grace of God, we want to receive the blessing of God, we want to receive the favor of God, and all this is not bad. I would not say that this is wrong, but let us receive the commandment of God because then we will be counted as wise. आइए, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम आशीषों को स्वीकार करें, बरकतों को स्वीकार करें और चीज़ों को स्वीकार करें, पर आज आइए प्रभु से कहें, प्रभु हम तुझे स्वीकार करते हैं, तेरे आज्ञाओं को स्वीकार करते हैं क्योंकि हम बुद्धिमान बनना चाहते हैं। Let us pray. Father, I thank you that your word makes us wise. When we receive your commandment, when we follow your word, Lord, we become wise, and we thank you that you have taught us today from your word how to become a wise man or a wise woman. Father, I pray as we all are gathered and attending this prayer, Father, I pray let every ear that hear this prayer may be able to learn to receive your commandment and to keep it in their hearts. प्रभु दुआ करते हैं हर एक जन ने, प्रभु जिसने ये वचन सुना हो,
क्योंकि तूने अपने वचन से सिखाया है कि आज्ञाओं को रखने वाला बुद्धिमान कहलाया जाता है प्रभु। और चाहते हैं जिस किसी ने इस वचन को सुना है, इन आज्ञाओं को सुना है, वो उसे अपने दिल में रखे प्रभु, और अपने दिल में रख कर, अपने दिल के अंदर रख कर खुदा यीशु मसीह उस पर चलने वाला हो सके, ताकि हम एक बुद्धिमान मनुष्य बनने वाले हो सकें। लेट योर होली स्पिरिट मेक अस अ वाइज मैन लॉर्ड। तेरा पवित्र आत्मा हमें एक बुद्धिमान जन बनाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस आई आस्क दिस प्रेयर, आमेन, आमेन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। आज के दिन जुड़ने के लिए हमारे साथ आपका धन्यवाद। एंड थैंक यू फॉर कीपिंग a conference in your prayer, Stay Alive conference. It has been a wonderful session over there in Moradabad, and we are ready to come to any nation which would like to invite us. जो भी नेशन हमें इन्वाइट करना चाहेगा, हम वहाँ पे आने के लिए तैयार हैं और आकर प्रभु की सिताइश करने के लिए आपके साथ तैयार हैं। सो प्लीज़ keep on praying for this conference, Stay Alive conference. It is going to continue, और ये चलती जाएगी और चर्चेस को स्ट्रॉन्ग करती जाएगी और हम खुदावन में और मजबूत होते चले जाएंगे। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन अ थर्सडे सर्विस विच इज़ एट 6:30 PM ऑनलाइन ऑन गॉस्पेल ऑफ डिलीवरेंस गॉड फेसबुक पेज। हमारे संग जुड़ना ना भूलें। हमारे थर्सडे की इबादत में 6:30 बजे इंडिया के टाइम के हिसाब से, जो गॉस्पेल ऑफ डिलीवरेंस गॉड के फेसबुक पेज पर होगी। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर भी, इस चैनल पर भी वो प्रेयर आ सके। हमारा प्रयास रहेगा, अभी हम आपको बता नहीं सकते, पर अगर ऐसा हो गया तो आप इस पे भी उसे सुन पाएंगे और ज्वाइन कर पाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।